جناب بالکل داغ لگا ہے، اور ایم کیو ایم کو معافی مانگنی چاہیے تھی. میں تو آپ کے سامنے معافی مانگتا ہوں. معافی کس بات کی ہے؟ اور معافی کس بات کی ہے؟ غلط اندازہ لگانے کی. اور ہمیں پتا تھا، کیونکہ اگر ایم کیو ایم فساد کرنے نکلتی اپنی ریلی لے کر تو عورتوں اور بچوں کو لے کے نہ نکلتی. ہم استعمال ہوئے ہیں، اس کے لیے ہم آپ سے شرمسار ہیں اور معافی مانگتے ہیں، لیکن ہماری انٹینشن نہیں تھی، نہ یہ ہمارا طریقہ ہے. جی جی شکریہ. جی آپ ماشاءاللہ سے کراچی کے آپ اس مالک نظر آتے ہیں کہ آپ کراچی کے مالک ہیں. ملکیت چھین لی گئی ہے، ملکیت چھین لی گئی ہے. انشاءاللہ وقت آئے گا آپ دوبارہ اسی علاقے کے مالک ہوں گے بطور ایک جمہوری پارٹی کے. ہمارا سوال یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کی بالکل ایسا ہے جیسا دماغ اور دل. اگر کراچی میں ہی حالات ہمارے پٹھانوں کے لیے یا اس طرح ماحول نہ ہو، پھر یہ آپ کیسے مالک اپنے آپ کو ثابت کریں گے؟ ایک مثال وہ یہ ہے کہ کراچی میں کسی پارٹی کے ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، جو بھی ہے، وہ اعلان کرتے ہیں، میڈیا پہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ پٹھانوں سے چائے آپ نے نہیں پینی. اگر وہاں پر یہ ماحول ہوگا تو ہم لوگ پنجاب سے کیا گیلا کریں گے؟ اگر وہاں پر ہمارے بلوچستان کی یہاں پر کوئی نہ فیکٹری ہے نہ کچھ ہے، مجبور ہو کر وہیں پر آپ کے علاقے میں آتے ہیں بزنس کے لیے، اگر وہیں پر آپ حالات اس کو سازگار نہیں کرنے دیں گے، یا آپ نے اس کو کاؤنٹر بھی نہیں کیا آج تک. جناب علی اسی بیان کے فوراً بعد حیدرآباد میں وسیم اختر صاحب نے مذمت کی تھی. وہ صاحب کون ہیں؟ وہ صاحب ہیں جو اپنا ضمیر بیچ کر اور بک کر اس تنظیم سے چلے گئے تھے آج سے 30 سال پہلے. وہ صاحب ہیں جن کو کراچی نے مکمل طور پر مسترد اور ناکام کر دیا ہے. آج اپنی ناکامی کی سزا کراچی کے امن کو خراب کر کے دینا چاہتے ہیں. کراچی تو اب پختونوں کی ہاتھ کی چائے کا عادی ہے، کوئی چھڑوا نہیں سکتا اس کو. کراچی میں کوئی معاشی کانفلکٹ نہیں ہے پختونوں اور کراچی کے مستقل باشندوں کے درمیان. جو کام آپ کرتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے، جو ہم کرتے ہیں وہ آپ نہیں کرتے. ہماری اور آپ کے ملاپ سے تو کراچی ایسا کراچی بنا ہے کہ جس کو بار بار جس کے سرمایہ کو بار بار جس کے حالات خراب کیے جاتے ہیں تاکہ سرمایہ کہیں اور چلا جائے، ملک کے کسی اور حصے میں چلا جائے. لیکن المیہ یہ ہے کہ سرمایہ جب کراچی کے ساتھ سازش کی گئی ہے، سرمایہ ملک میں نہیں رہا، پھر وہ بنگلہ دیش، ملائیشیا، دبئی چلا گیا، بلکہ کینیا اور یوگانڈا تک چلا گیا. ایم کیو ایم نے مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے تحریک شروع کر کے اس کو متحدہ بنایا تھا. میری 2-3 سال کی جلا وطنی پختونوں اور بلوچوں کے درمیانی گزری ہے، تاریخ گواہ ہے. اسی کوئٹہ میں، خیبر پختونخوا میں اور سرائی کی بیلٹ میں اس دور میں بی بی جی کے دوسرے دور میں ہم اس پوری جد و جہد نہیں، اس کو مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ بنا دیتا. شاید کسی کو پتہ نہ ہو اور میڈیا میں نہ دکھائے کہ جب 2015 کا جو بلدیاتی نظام تھا، بلدیاتی الیکشن تھا، ایم کیو ایم نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کی تھی. آپ کو پتہ ہے ہمارا لیڈر آف دا ہاؤس کون تھا؟ ایک ایسا پختون جو 2 میل دور سے آپ کو پتہ لگ جائے کہ پختون آ رہا ہے، اسلم آفریدی، خیبر ایجنسی کا اسلم آفریدی. وہ ہمارا یعنی 100 میں سے 90 اردو اور گجراتی بولنے والوں کے درمیان ہم نے کسی کو قائد ایوان بنایا تھا تو پختون کو بنایا تھا. ہم نے اسی بلوچستان میں جب میں روپوش تھا، یہاں مجھے شاوانی ملا تھا. جانتے ہیں آپ یوسف شاوانی کو؟ ہم یہاں سے لے گیا کراچی سے، اس کو الیکشن جتوایا تھا، ایم پی اے بنوایا تھا. تو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں اور چاہتے ہیں آپ کی اور ہماری شراکت سے مظلوم قومیتوں کے لیے بھی، لاپتہ ہونے والے جیسے گھناؤنے واقعات پر بھی
कानून की बालादस्ती पे भी मिलकर जद्दोजहद और मिलकर मौक़िफ़ अपनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब। Whether ruling party can eliminate the inflation from country? I don't think so. कोरोना और उसके बाद के बैरूनी हालात ने भी महंगाई के लिए हालात पैदा कर दिए, लेकिन हुक्मरानों की जिम्मेदारी ये होती है, महंगाई किसी भी तरह से हो रही है और किसी भी वजह से हो रही हो, उसको सतह गुर्बत से नीचे रहने वालों को के लिए खुसूसी इंतजामात किया जाए ताकि वो महंगाई के हाथों कुचले ना जाएं। और यही हम बार बार वज़ीर आज़म से कहते रहें कि आपने जो वादा किया था उसमें सबसे बड़ा वादा ये है, कोई रास्ता निकालें, कोई इरादा, और मुश्किल नहीं है जनाब आली। खरबपति जागीरदारों से आप एक पाई का टैक्स नहीं लेते, आप इनडायरेक्ट टैक्स कम करें और डायरेक्ट टैक्स सनतकारों पे लगाएं, सरमायादारों पे लगाएं, जागीरदारों पे लगाएं, ताकि उसको तालीम के लिए, सेहत के लिए और गरीब लोगों, गरीब तबके को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। हम आपसे आज एक और दरख्वास्त करते हैं यहाँ वकला से, आपको जो कानून साजी करानी हो वो हम तक भेजें। हम अपनी सियासी ज़रूरत से और मसलियत से बालातर होकर उसके लिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कैबिनेट में जितने लोग बैठे, अगर आप देख लें, शायद एक आप मिडिल क्लास से होंगे, वो तो सारे लैंडलॉर्ड हैं। उन्होंने जो लाजमी बात है, या तो क्या कहते हैं, डायरेक्ट उनके अपने बिजनेस हैं, या वो इनडायरेक्ट जो है कहीं पे पार्टनर है, कुछ है, वो बिजनेसमैन को फायदा पहुंचा रहे हैं। अगर कल को एक चीज़ 5 रुपये में कोई शख्स लेता था, आज आपने टैक्सेस लगा दी, कुछ भी कर दिया, तो उन्होंने वो 10 रुपये कर दिया। अब उनके प्रॉफिट और मार्जिन बढ़ गए। कोई भी आवाम का सोचने के काबिल नहीं है। सीधी सी बात है, आप वहाँ पे बैठते हैं, आपको मिडिल क्लास का पता है कि मामला क्या है। पॉलिसी बनाने चाहिए, वैसी ऑर्डिनेंसेज वो बैठ के पास किए जा रहे हैं, उनको बोले कि भाई आप ये सारी गवर्नमेंट की गाड़ियाँ बंद करें, सारे गवर्नमेंट के पेट्रोल बंद करें, अरबों रुपए आपके बच जाएंगे। ये गैस को आप बिजली घरों को देते हैं, आप फर्नेस ऑयल किस लिए मंगा रहे हैं? बिजली घरों को गैस पे चलाएं, सारे पाकिस्तान को बिजली दे दे, सस्ते दामों दे दे, महंगाई कम होगी। पॉलिसी बनाने वाले जो है इसलिए नहीं बनाना चाह रहे कि फिर इनके रास्ते बंद होंगे ना। अब ये मेडिसन आपको पता है, मेडिसन ये जब ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग जब ये लोग करते हैं, या मल्टी नेशनल कंपनीज आप देख लें, मल्टी नेशनल का यहाँ पे रेट देख लें, इंडिया में देख लें, और जो लोकल कंपनीज हैं इनका क्या हाल है, 10 रुपये की चीज़ बनती है, 700-800% पे जो ये रेट फिक्स करते हैं और मजीद बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये भी एक माफिया है। आप तो वहाँ पे बैठे, आप मिडिल क्लास से गए ऊपर है, तो आप कम से कम उनको बोले भाई। आपने मेरी पूरी तकरीर सुनी होगी, वज़ीर आज़म साहब से हमने की थी कि हम, और वो ये जी कैबिनेट में बिल्कुल हैं, और किसी दिन हम वो भी दिखाएंगे कैबिनेट के फैसलों के ख़िलाफ़ जो नोट होता है उस पर MKM ने कहाँ, ये भी एक तारीख़ी डॉक्यूमेंटों का किसी दिन दिखाएंगे आपको। महंगाई बिल्कुल है। हाँ, इमरान खान साहब की इस हुकूमत में मजमूई तौर पे तकरीबन 9.25% महंगाई में इजाफा हुआ है। जरदारी साहब के दौर में तकरीबन 3.5 से 14.25% महंगाई में इजाफा हुआ था। महंगाई वक्त के साथ इजाफा होता है, लेकिन हर माशरे में हो रहा है। जहां मजबूत माशरे कमज़ोर तबकात के लिए कानून साजी करते हैं और कमज़ोर माशरे मजबूत लोगों को, मजबूत कम्युनिटी की, मजबूत अफराद की लिए कानून साजी करते हैं। हम अलमिया ये है, अफसोस की बात यह है कि हमें तस्लीम करने लेना चाहिए। हम एक कमज़ोर माशरे में, एक जालिम माशरे में, एक जागीरदाराना माशरे में जो जबर से जहालत में पलता है, उसमें हम रहते हैं। उसी के लिए, उसको तब्दील करने के लिए हमने अपने हिस्से की तो तब्दीली लिया है। आज भी इतने ऑपरेशंस के बाद, इतने कत्लेआम के बाद, इतने लोगों की लापता होने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ऐवान का एक टुकड़ा ऐसा है, चाहे हम 7 बैठे हों या 27 बैठे हों, जहाँ पे पेशावर सियासत नहीं होती। पेशावर सियासत होगी,
सियासत बिजनेस होगी। इनके लिए सियासत इनका कारोबार है, और इस कारोबार में, इस बिजनेस के लिए हम जैसे लोगों को कहते हैं दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। आप कारोबार की इस मंडी में ये अपने बच्चों को उतारने के लिए उनका हसब और नसब तक तब्दील कर देते हैं। आइए मना कीजिए अपनी अपनी जिन पार्टियों में है कि बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद पोते को सरबराह बनाने और लीडर बनाने की रस्म खत्म की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शायद पंजाब से भी आएगी, कहीं और से भी आएगी। क्या इन सब मामलात को ठीक से ले जाने के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ले जाने के लिए पाकिस्तान को किसी नए इमरानी मुआहदे की जरूरत है? इस हवाले से आप क्या? जनाब, पाकिस्तान लगता तो ये है, मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए आपकी मौजूदगी में, कि पाकिस्तान में जितने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे, ये अहम बात कर रहा हूं, पाकिस्तान में जितने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे उतनी पोलराइजेशन बढ़ेगी। तो इसका मकसद ये नहीं है कि आप ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ना कराएं, आप उस पोलराइजेशन की वजूहात को तलाश करें और उसको एड्रेस करें पाकिस्तान के हुक्मरान, और ख़ास तौर पर असल हुक्मरान। और एक नया इमरानी माहदे की जानिब पाकिस्तान बढ़ रहा है, जो कि सूबों के बजाय लगता है कौमियतों के दरमियान होना है। जब तक पाकिस्तान में तमाम लोगों को बराबर का वफादार, बराबर का हकदार नहीं समझा जाएगा, पाकिस्तान के गरीबों के दरमियान पार्टनरशिप नहीं होगी, पाकिस्तान इसी तरह रेंगता हुआ चलता नजर आएगा, लोग लापता होते रहेंगे। हमारे 92 से लेकर 96 तक तकरीबन 27 अफराद उस जमाने में लापता हुए थे। जब हमने इसरार बढ़ाया तो उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी शुजात ने हमें बताया कि हमने सबको मारकर मारगाला की पहाड़ियों में दफन कर दिया है। हम आज अपने 125 साथियों के लिए फिर तलाश में लगे हुए। माएँ उनकी तलाश कर रही हैं, उनकी बेवाएं हमारे पास आती हैं, हमारे पास जवाब नहीं है। पाकिस्तान के ज़मीर के पास जवाब नहीं है, पाकिस्तान की हुकूमत के पास जवाब नहीं है, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के पास जवाब नहीं है। आइए मिलकर इन जवाबों को तलाश करें। अच्छा खालिद साहब, ये आपने दुबई यूनियन की बात की कि जहाँ कानून सियासत का हाल हुआ, उनके सरबराह इफ्तार हुसैन साहब से अभी जो है उनके करीब हुए लंदन से, क्या दोबारा उनसे कोई बातचीत हुई है या दोबारा जो है पाकिस्तान गई? तो जनाब, लंदन की अदालत में जो अच्छा एक और अपील महंगाई की आपसे बात की तो अपोजिशन जो है जमातों ने तहरीक अदम भी तैयार किया है और एहतजाज भी कर रहे हैं। इस हवाले से आपकी पोजीशन कहाँ? जनाब, पहली बात तो यह है कि जो लंदन अदालत से फैसला हुआ है वो पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत को उसको एड्रेस करना है। हमने उनके पर बनने वाले किसी मुकदमे की वजह से नहीं किया था। हमारी जो बुनियाद थी पाकिस्तान, उसके खिलाफ एक नारा लगा था, वरना डर के करते तो 92 में इतना बड़ा फौजी ऑपरेशन हुआ था, उनको छोड़ देते। इल्ज़ामात तो लगते रहते हैं। हमने उस नारे पे जो हमने अपनी खुद कानों से सुना है, उस पे हमने उनसे अलहदगी इख्तियार की थी और वो मौजूद है अलहदगी। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि अदम एतमाद की कई बार फ़िज़ा कायम हुई है, जब अपोजिशन को एक दूसरे पर एतमाद नहीं होगा तो अदम एतमाद कहाँ से लाएंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब।